Hi everyone, this is Yugansh. Welcome back to the channel and to another power packed episode of Nonsense Paradise. And today I'm here with Anupam Rungta. Anupam Rungta is a full time investor, and why I say full time, we'll discuss that. So, Anupam, can you please introduce yourself? Hi Yogansh, thank you for inviting me for this. My introduction is that I am a SEBI registered research analyst and also a certified financial planner. What I do as a profession is I conduct courses in mutual funds and stock market. Plus, I also have an advisory service in stocks. And as you said, rightly said, I am a full-time investor. So my core activity or what I do day in and day out is research on stocks, and that is something which is like ongoing, and that's how the stock recommendation service was also formed. And yes, I mean, I am actually a full-time investor because that's where my most of my energy and time goes. Nice. So, one more thing. Why do you always use this line that you are a SEBI registered analyst? Is it something similar to CA that most people don't get it, or is it something which most of the investors aren't SEBI registered or not? So two things. Good you ask this question. One, it's not that it's very tough to get the license. It's not that so, but it's more important that as a license holder of SEBI, I have to go through a lot of compliances and regulations. I mean, I have to maintain a certain set of compliances while I'm recommending stocks, while I'm trading in my own portfolio. And all these compliances are such that it is in the favor of investor. It is from the investor's interest point of view. So, for example, if I'm recommending a stock tomorrow, I say go and buy Kotak Bank. I'm just giving an example. I cannot buy that stock 30 days before in my own Demat account, and I cannot buy it after 5 days also for next 5 days also. So in a way, I cannot front run that call. What people might do is, let's say you don't have a license, or even if you have a license, let's say I buy Kotak Bank stock today in my portfolio, and I've got hundreds of subscribers. Tomorrow, I shoot a mail to them, buy Kotak. So you know that stock price will might zoom up, Correct. and I have already bought that, right? So Correct. that's like one kind of compliance I'm talking about. There are set of compliances in such a way that I cannot do anything which is uh, against the investor, or which is something in my interest and not in their interest. So this brings a lot of credibility in terms of what I am doing. I have to undergo audit as well. I have to keep my audit report ready, so we can ask for that Okay. like 5 year old audit report also. And that audit report contains the email conversations I have done with my investors, the transactions, all my trading account transactions which I have done, and they can come out with anything which is not in compliance. So that brings a lot of credibility, and plus it uh, helps the investor to be at peace of mind that whatever is being recommended, it is being monitored as well. So, Anupam, I want to know more about your investment journey. Though we've been in touch for a few months now, and Anupam is the person I now look up to for the investments. And so, Anupam, like the story I know about Anupam is in के father जो थे, he started investing in I think 1990s or 80s, and then he started seeing his father trading in the market, investing in the market, and then वहाँ से as a kid he got interest in stock markets, right? So, but I want to know the journey when you started doing this thing as a full time. So, वो चीज कहाँ से शुरू हुई? When did you decide to drop your full time job because you were in job? I think till 2006 or 5. उसके बारे में भी बताओ. Sure. So first of all, my father started investing in 1978. So Wow. 43 years कंप्लीट हो जाएंगे उनको अभी. और मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू हुई थी 2006 में, जब मैंने अपनी पहला इनकम शुरू करी आफ्टर माई इंजीनियरिंग. एंड फुल टाइम एज अ करियर मैंने इसको 2010 ऑनवर्ड से लिया. दो मैं 2006 ऑनवर्ड जब मैंने कमाना शुरू किया और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो मेरी रिसर्च शुरू हो गई थी साइड बाय साइड, वट एवर टाइम जो मुझे आई यूज टू गेट वीकेंड्स पे या कभी भी, क्योंकि वो इंटरेस्ट था, एक वो घर में माहौल था शुरू से इन्वेस्टमेंट्स को लेके. तो वो इंटरेस्ट तो हमेशा हमेशा से ही था. एंड बाय 2010 व्हेन आई गॉट इनटू इट फुल टाइम, तब तब वो रिसर्च और फास्ट हुई, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, एंड आई कुड डिवोट मोर टाइम इनटू इनटू रिसर्च आफ्टर दैट.
बट हाँ, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट 2006 से शुरू हो गया था, एज सुन एज आई स्टार्टेड मेकिंग माई फर्स्ट फर्स्ट मनी। और कैसे, व्हाई डिड आई स्विच फ्रॉम जॉब टू बिजनेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन जब मैंने बिजनेस में भी स्विच किया, सो आई वांटेड टू डू लाइक a couple of things at the same time. मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट्स वाला तो मैं कर रहा हूँ, I want to continue that, but I want to try something out else as well, some new venture or something exciting as well. और मैंने एक दो एक्सपेरिमेंट्स भी किए, वो वर्क नहीं हुए, एंड फाइनली मुझे रियलाइज हुआ दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी, एंड स्टॉक मार्केट रिसर्च एंड स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इज वेयर माई हार्ट इज। Or now it's been more than 6.5, 7 years that I'm full time into what I'm doing today. Wow. So, do you think, like, by the way, do you come from a financial background? I mean, finance background specifically. Not really. So I'm an engineer by Okay. profession, but engineering के अलावा सारे काम किए हैं. So as soon as I completed my engineering, even job भी जो करी थी वो engineering field में नहीं थी. Job भी वो finance field में ही थी. Thankfully I got the job, but it was not like hardcore finance. But I was in fact in a private equity team of a Kuwait-based company. So that's how it started. So job भी कभी core engineering में नहीं करी. So, do you think, like, let's say if there is someone who's from a commerce background and then there is someone who's an engineer, so at the time of starting their investment, the commerce person have a kind of a upper hand? सी इंटरेस्टिंगली, अपने एजुकेशन सिस्टम में, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे इवन एमबीए हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, देर इज नथिंग इवन क्लोज टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है वो थियोरेटिकल मिलता है, इकोनॉमिक्स के ऊपर मिल जाएगा, फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मिल जाएगा, बट स्टॉक सेलेक्ट करना या इवन म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करना, दैट इज सो डिफरेंट। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी कोर्स, including I guess CFA comes very close to stock investing, but that too is more on the theoretical side rather than practical. So the only way you can learn stock investing is by starting to read books and articles, and maybe now you can watch YouTube videos, annual reports पढ़ो, rating agencies की report पढ़ो, that's how you learn, that's the only way to learn. तो आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आई मीन व्हेन मी बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अगर मैं समझ सकता हूँ तो आई थिंक कोई भी समझ सकता है. सो इट इज नॉट टफ टू अंडरस्टैंड, इट इज देयर इज नो रॉकेट साइंस, बट हाँ, टाइम डिवोट करना पड़ता है. अब आप चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू लेवल कितना हाई है लो है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप कितना टाइम डिवोट करते हो, उतना ही आपका रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगा. और दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. मैंने कोई 5 साल बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगले 10 साल तक मुझे कुछ नहीं करना. इनफैक्ट द रिक्वायरमेंट टू रीड ओनली इंक्रीजेस विद टाइम. तो Correct. कॉमर्स You have बैकग्राउंड to है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से. will have to be stay updated with the market trends, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. हाँ, So मार्केट ट्रेंड से ज्यादा आई वुड से ट्रेंड इन द सेंस, यस, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस में क्या हो रहा है. सो जब हम मार्केट ट्रेंड बोलते हैं तो यूजुअली हम प्राइजेस की बात करते हैं, बट स्टॉक प्राइस के अलावा क्या क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, बिजनेस में क्या हो रहा है, आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बिजनेस में क्या हो रहा है, वो देखना correct. जरूरी. So Anupam, I know a lot of people who are making like decent money, 50,000, 60,000, 70,000 a month. But every month at the end of the month, they have like almost 0 rupees in their bank account, right? So what are the basic money management tips you can give to someone who just started making money? वेल, एक फॉर्मूला सबने सुना है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. So that is actually the, so I let me tell you a small story. So when I started earning and I got my first salary, I remember just before getting that first salary, 2-3 days पहले पापा का फोन आ गया कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या सोचा है. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कॉल, मुझे पता था ये कॉल करने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे. मैंने कहा मुझे 1 महीने का टाइम दो, क्या खर्चे होते हैं आइडिया लग जाएगा, और मंथ के एंड में जो बचेगा वो सारा इन्वेस्ट कर दूंगा. एंड आई वाज सेइंग इट लाइक इन एज अ, आई वाज प्राउड ऑफ सेइंग दैट कि जो बचेगा वो सारा कर दूंगा इन्वेस्ट. सो ही इज लाइक, अनुपम, इफ दिस इज योर अप्रोच, लेट मी अश्योर यू, फॉर नेक्स्ट 7-8 years कोई सेविंग नहीं होने वाली, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि मंथ के एंड तक कुछ बचने ही नहीं वाला, सब खर्च हो जाएगा और सब जेन्युइन चीजों में ही खर्च होगा. तुम्हें लगेगा कि सब जेन्युइन चीजों में ही खर्च किया है. सो ही सेड कि फर्स्ट को या सेकंड को सैलरी आती है, थर्ड ऑफ एवरी मंथ को इन्वेस्ट एज लो एज पॉसिबल, बट मेक श्योर यू इन्वेस्ट ऑन एज सुन एज यू गेट द मनी. एंड आई रिमेम्बर मैंने जब शुरू किया था बहुत छोटे अमाउंट से शुरू किया था, बट मैंने ये भी रियलाइज किया 6 महीने बाद कि यही कॉल अगर पापा ने 6 महीने बाद किया होता
तो कोई चांस ही नहीं थी कि मेरे पास वो पैसे बचते, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसे बचते थे वो डेफिनेटली 30 तारीख तक खत्म हो जाते थे, और वो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का था वो भी बहुत छोटा था। अगर वो मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो वो भी मैं कहीं ना कहीं खर्च कर लेता, वो बचता नहीं, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। हैविंग सेड दैट, इसमें भी यू नीड डिसिप्लिन, यू नीड सम मोटिवेशन। इट्स नॉट लाइक कि आपको ये मालूम है इसलिए आप कर लोगे। तो कहीं ना कहीं you need someone to guide you maybe, or someone to nudge you, someone to tell you from family or friends, your colleagues। वो एक environment होना चाहिए। आपके सब दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, वो उनके पास 10,000 रुपए ज्यादा है खर्च करने के लिए महीने के, और आपके पास कम है, तो कहीं ना कहीं आपको वो पिंच करने लग जाएगा आफ्टर 3rd 4th मंथ की यार मैं तो ऐश ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लाइफ जी नहीं रहा हूँ। देन दे आर वो एंजॉय कर रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, राइट। तो आपको वो एक सर्कल होना चाहिए जहाँ पे पीपल आर कॉन्शियस अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले। अगर आपके सर्कल में कोई नहीं कर रहा है तो आप 2-3 महीने करोगे, चौथे महीने से आप भी बंद कर दोगे। So somewhere you have to have that environment around you, and plus you should know that you know why you are doing this, and you should know कि इसका impact आएगा, long term में आएगा, पर आएगा इसका impact। तो it's more about the habit। अगर आपने आज हैबिट नहीं डाली, तुम बता रहे हो 70 50 60 70,000 की इनकम है, लेट मी अश्योर यू व्हेन दे हैव 1 लाख एंड 1.5 lakhs ऑफ इनकम ना, तब भी कुछ नहीं बचना, क्योंकि वो गाड़ी उतनी बड़ी हो जाएगी, ईएमआई उतनी बड़ी हो जाएगी, वेकेशन भी उतनी बड़ी हो जाएगी, नंबर ऑफ वेकेशन इंक्रीज हो जाएंगे, 4 स्टार की जगह 5 स्टार में रहोगे, वंस इन अ वाइल बिजनेस क्लास में ट्रेवल करोगे, यू विल फाइंड वेज टू स्पेंड दैट मनी। कोई कमी नहीं है पैसा खर्च करने की, आप 10 लाख रुपए महीने के भी खर्च कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा उड़ाना बहुत आसान है। हैबिट डालने वाली बात है। और हैबिट अगर फर्स्ट इनकम से पड़ गई तो इट विल बी इजी। अगर 1 साल बाद डालने की कोशिश करोगे तो टफ हो जाएगा, 2 साल बाद और टफ हो जाएगा, 5 साल बाद तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कुछ भी सेव करना, सबसे ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट मेरे को ना थोड़ा सा गेयर शिफ्ट कर रहे थे। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बट मनी मैनेजमेंट इन जनरल। एंड लाइक जस्ट टू एलैबोरेट व्हाट डू आई मीन बाय मनी मैनेजमेंट, लाइक मेरे पास आई थिंक आई हैव 4 बैंक अकाउंट्स अभी। तो मेरे को पता है कि किस बैंक अकाउंट से मैंने कार्ड स्वाइप करना है, कहाँ पे फ्यूल स्टेशन या कहीं भी, उसमें कम कैश रहता है, कम वो कैश वगैरह रहता है। एंड देन देयर इज अनदर अकाउंट जहाँ पे विच इज काइंड ऑफ माई सैलरीड अकाउंट, जो मेरा सैलरी अकाउंट है, वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। एंड देन देयर इज अनदर अकाउंट जहाँ पे मेरे इमरजेंसी फंड्स हैं, जिसको मैं हाथ ही नहीं लगाता, उससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, ना कार्ड से ना नेट बैंकिंग से। सो उस सेंस में मनी मैनेजमेंट पूछना चाहता था। लाइक पीपल टॉक अबाउट, लाइक आपने भी जैसे बोला, इनकम माइनस सेविंग शुड बी इक्वल टू एक्सपेंसेस, राइट। बट एक्सपेंसेस मेरे हिसाब से होते हैं जैसे आपका रेंट हो गया, आपका फूड, या फिर जो भी बेसिक नीड, जो भी मतलब यूटिलिटीज वगैरह होती है। बट देन लेट्स से देयर इज समवन फ्रॉम दिल्ली बट वर्किंग इन बैंगलोर, राइट, तो उनके पास इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए, आपको घर भी आना है, उसके लिए फ्लाइट की टिकट्स भी चाहिए होती है महीने में, 2 महीने में। सो उसके हिसाब से मेरे को पूछना था, लेट्स से समवन इज नॉट इन्वेस्टिंग देयर मनी, राइट, उनका बैंक अकाउंट में पड़ा है बस जो भी बच रहा है थोड़ा बहुत। सो उसके हिसाब से व्हाट शुड बी द मनी मैनेजमेंट टिप्स? See, first of all, managing 3-4 different bank accounts itself is quite a task. Yes. एक मैं छोटा tip यहाँ पे ये दे सकता हूँ कि जहाँ तक इमरजेंसी फंड्स की बात है, instead of keeping it in savings account, you should keep that in maybe liquid funds. There are different kinds of debt funds in mutual fund category. बहुत तरह के debt funds होते हैं, short term, ultra short term, liquid fund. So liquid fund is a kind of debt fund जिसमें आपको रिटर्न सेविंग से ज्यादा मिलते हैं पर एफडी से कम मिलते हैं। तो इट्स लाइक अ सेविंग्स अकाउंट विद अ स्लाइटली हाई रिटर्न, यू कैन टेक इट लाइक दैट। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर मनी इन योर सेविंग्स अकाउंट जो आप रेगुलर खर्चे के लिए यूज करते हो, वट एवर इमरजेंसी फंड्स यू वांट टू कीप, वट एवर बफर यू वांट टू कीप, उसको उठा के लिक्विड फंड में डाल दो, जिससे कि आपकी वो आंखों के सामने से चला जाएगा, तो आप उसको खर्च नहीं करोगे। सो दैट इज आइडिया यू हैव, दैट्स व्हाई यू हैव अ डिफरेंट बैंक अकाउंट कि मेरे को उसको देखना नहीं है, मुझे उसको खर्च नहीं करना, right? So you have kind of managed it that way, but the one other way to manage it is that put it in a liquid mutual fund. Apart from that, what you're saying, I get your point कि कोई बाहर रहता है, कोई रेंट देना है, उसको ट्रेवल भी करना है, पेरेंट्स के पास जाना है, कुछ इस तरह के खर्चे हो जाते हैं जो वंस इन अ वाइल होते हैं, कुछ खर्चे रेगुलर भी होते हैं। सो मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट को हटा के भी अगर हम बात करें, सो इमरजेंसी फंड इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग यू शुड क्रिएट। और आइडियली इमरजेंसी फंड जो होता है वो होता है 6 months के एक्सपेंसेस। अगर मेरा 50,000 रुपीज पर मंथ के एक्सपेंस है, तो 6 months का मतलब 3 लाख रुपीज मेरे इमरजेंसी फंड में होने चाहिए एट एनी पॉइंट इन टाइम। अब इमरजेंसी फंड नाम इमरजेंसी है, पर इसको आप कई चीजों में यूज कर सकते हो। मुझे कुछ खरीदना है, कोई वॉच लेनी है, कुछ मोबाइल लेना है, तो वो इमरजेंसी फंड में से आ जाएगा। मुझे टैक्स पे करना है, अब इनकम टैक्स पे करते टाइम एकदम से एक लमसम अमाउंट जाता है,
तो वो मेरा इमरजेंसी फंड में से निकल जाएगा। मुझे टैक्स सेविंग के लिए कुछ फंड चाहिए, जनवरी फेब मार्च में हम भागते हैं कि कोई टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो जिससे कि टैक्स बच जाए, उस टाइम मेरा इमरजेंसी फंड काम आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस की एक्चुअल कोई इमरजेंसी हो गई, मेरा जॉब लॉस हो गया या कोई बिजनेस में इनकम नहीं हुई, तो आई हैव द इमरजेंसी फंड विद मी। तो इमरजेंसी फंड 6 मंथ्स का होना, दैट इज वन फर्स्ट स्टेप यू शुड हैव। और जैसे ही वो कम हो, 3 लाख का मान लो 2 लाख हो गया, कुछ खर्च कर दिया, उसको वापस रिप्लेनिश कर लो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स के अंदर, so that it come back to 3 lakh rupees, right? So this is one way. Next, what comes in practice is to have your insurance cover, especially your medical cover in your term plan. अब term plan की requirement actually तब होती है when you have someone dependent on you. अगर आप married नहीं हो तो हो सकता है आपके parents आप पे dependent नहीं है, they are self sufficient, then you don't need a term plan that time. But when you are married, then you need to have a term plan if your wife, if your spouse, and then your children are dependent on you financially. So a term plan is one basic need, and a medical plan. आजकल हॉस्पिटल में जाओ, सारे 5 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल आ चुके हैं। आप 3 दिन अगर गलती से एडमिट हो गए, कुछ नहीं भी हुआ होगा, तो भी 2-3 लाख का बिल बन जाएगा। और आपने वो जो सेविंग करी है, चाहे इमरजेंसी फंड में, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट किया, वो 1 हफ्ते में पता लगता है कि वो सारे जो 2 साल मेहनत करी थी वो 1 हफ्ते में खत्म हो गई। सो दैट टाइम यू गेट टू नो कि अगर मेडिकल प्लान होता, 10,000 रुपए साल के प्रीमियम दिए होते, तो ये पैसे बच गए होते, राइट? सो दैट्स अनदर थिंग टू लुक एट। या ब्रॉडली ये हो गया, टैक्स सेविंग हम कर ही लेते हैं क्योंकि हमें पता है टैक्स बचाना है। इंश्योरेंस कवर हो गया, मेडिकल कवर हो गया, एंड इमरजेंसी फंड हो गया। इसके बाद बचता है इन्वेस्टमेंट। then the next important thing is actually investment. Why I'm keeping my emergency funds in a bank account is मैंने काफी precisely काफी रिसर्च के बाद ये बैंक ढूंढ के निकाला था। So ये बैंक मेरे को SBI की FD से बेटर रेट्स दे रहा है, इंटरेस्ट रेट। So इसलिए मैंने इस बैंक में भी रखे हुए हैं। Great. And now Got it. आपने ना इसका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का बोला, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस वाला कल्चर है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, लोग यहाँ पे नहीं कराते हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों है कि वी डोंट हैव अ कल्चर हियर एज अ होल नेशन? कल्चर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लगता है हम हेल्दी हैं, अच्छा खा रहे पी रहे हैं, कोई बीमारी नहीं हुई, पड़ोसी बीमार पड़ जाएगा, हम क्यों पड़ेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं कोरोना का। सबको लगता था कि और दुनिया को हो रहा होगा कोरोना, मुझे नहीं होगा, पर जिनको हुआ उनको मालूम है फिर कैसे हुआ और फिर कितना खर्चा हुआ और कितनी तकलीफ हुई। तो हमें हमेशा ये वो माइंडसेट यही है कि हम वी आर ईटिंग हेल्दी, हमारी फैमिली में कोई हेरिडिटरी भी नहीं है, कोई ऐसी डिजीज भी नहीं है, तो खर्चा होगा ही नहीं, मतलब कोई बीमार होने ही नहीं है, थोड़े बहुत बीमार होंगे वो घर पे ठीक हो जाएंगे, तो क्यों 10,000-15,000 रुपए देना? दूसरा उसके पीछे एक लॉजिक ये होता है कि हम हर चीज में रिटर्न देखते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में कोई रिटर्न नहीं मिलता। अगर मैं बीमार नहीं पड़ा 10 साल तक, 20 साल तक, तो वो पैसा तो मेरा वेस्ट जा रहा है। तो दैट इज अ माइंडसेट कि मुझे कुछ मिलना तो चाहिए रिटर्न में, तब तो मैं पैसा लगाऊं, मैं बिना बात के खर्चा क्यों करूं? इट्स लाइक कार इंश्योरेंस। अब कार इंश्योरेंस में तो क्या कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि यू हैव टू गेट द कार इंश्योरेंस, अदरवाइज वो पुलिस वाला पकड़ लेगा तो चालान लगा देगा, अदरवाइज वो भी नहीं लेंगे लोग, राइट? अब आप कार इंश्योरेंस में ये नहीं सोचते कि यार पूरा साल निकल गया, प्रीमियम दे दिया था, कार तो ठुकी नहीं, ठुक जाती तो पैसे तो वसूल होते। यू डोंट रिग्रेट कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, राइट? इसी तरह आप बीमार हो गए तो भी वो रिग्रेट नहीं करोगे कि मैं बीमार नहीं हुआ, पर हाँ कहीं ना कहीं लगेगा यार ये बिना बात के पैसे जा रहे हैं, कंपलसरी भी नहीं है, मैंने जबरदस्ती कर रखा है। तो जब तक वो डंडा नहीं पड़ता ना, पुलिस का डंडा पड़ा हुआ वहां पे, गवर्नमेंट का डंडा है, तो हमने वो कर लिया। कल अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाएगी तो वो भी हम कर लेंगे, नहीं तो पता लगा उसमें टैक्स लग गया, चालान लग गया, वट एवर द पेनल्टी इज। सो कल्चर होने के पीछे दो ही रीजन है इस तरह के, एक तो पैसा खर्च नहीं करना जहां पे रिटर्न नहीं मिल रहा, और दूसरा हमें लगता है हम बीमार नहीं पड़ेंगे, दुनिया पड़ जाएगी बीमार, हम नहीं पड़ेंगे। और जब पढ़ते हैं, अभी कोरोना में आई नो सो मेनी पीपल हु गॉट द इंश्योरेंस डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि उनको कोरोना हुआ और उनका 5 लाख 7 लाख 10 लाख का खर्चा हुआ, तब उनको लगा यार अब करा रहा हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं लगता। And even for the car insurance वाला एग्जांपल जो आपने दिया, I remember this conversation I had with the service center. बम्पर पे थोड़ा सा वो टच आ गया था, उन्होंने कहा इंश्योरेंस है, बम्पर ही चेंज करा लो आप। So Anupam, now there is one very fascinating thing about you. मतलब at least मेरे को तो starting से ये चीज काफी fascinating लगती है, that you are in your 30s and you say you are financially free. Correct? What do you mean by that? Right. See, in my opinion, there are 2 levels of financial freedom, and I have achieved the first one very clearly, and the second one I'm very near to. I'll tell you the 2 levels. The first level is when I can do what I want to do in my career, in my profession, without worrying about immediate income. So अगर मेरा बिजनेस अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल से नहीं चल रहा है, तो मैं डेस्परेट नहीं होऊंगा कि मेरे को जॉब कर लेनी चाहिए या बिजनेस
कोई ऐसा करना चाहिए जहां पे पैसा आ जाए एक बार, चाहे मेरा मेरा वो पैशन हो या ना हो. सो आई कैन परस्यू व्हाट आई वांट टू डू, इवन दो मुझे पता है कि उसका जेस्टेशन पीरियड लंबा है. तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आई? क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया 2006 से लेके आज 2020 तक, इनफैक्ट 2018 की बात करते हैं, 2019 के बाद से आई हैड अ टफ पीरियड इन माय बिजनेस आल्सो. पर जो 2006 से लेके 18 तक जो सेविंग की थी, उसका जो जो वो एसेट्स क्रिएट हो गए थे, मुझे पता था these assets are more than enough for me to sustain for a very long period without me getting desperate about getting into a different business or doing some job just to get that income, per month wali income. So I was able to, run my household without any conjuicy, without any economic slowdown in my household. Mhm. That's level one. Level two of financial freedom is, I say, when I start getting enough income from my investments. For example, I am doing stock investment, so इतना डिविडेंड आना शुरू हो जाए कि मेरा जो साल का खर्चा है घर का, वो डिविडेंड से निकल जाए. सो दैट्स लाइक एक्चुअल ट्रू लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. उसके बाद मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, मुझे उसको बेचने की जरूरत नहीं है, मेरे डिविडेंड इनकम से मेरे खर्चे निकल रहे हैं. So whatever I am doing in my profession and I am earning, that's like complete bonus. I am not using that in my regular expenses. And when I say household expenses, it includes my vacation, includes my shopping, includes my all those luxury expenses I do once in a while. Be it some new appliance in home, some small or big renovation, whatever expenses I do in a year, divided by 12. That amount should be available through dividend income or whatever income, maybe if you are investing in property, then rental income. So that's called the true level of financial freedom, where you're not getting up in the morning and doing the work because you need to pay your bills. जब वो achieve हो जाएगा, that's like the next level, and I'm not very far from that, touch wood. So Anupam, for that, I'm pretty sure you must be having some heavy SIPs initially. आपने काफी सारा मतलब जो initial phase होता है और life जब आपका पहला पहला paycheck first person income आनी शुरू हुई थी, I'm pretty sure you must be investing a lot of money at that time, right? So what, like in terms of number, in terms of percentage, आप कितना percent उस time invest कर रहे थे? See, actually, Yugansh, it's the other way around. The best part about compounding is actually that you don't have to start big, you have to start early. So what worked for me actually was that I started investing from very first income which I had in my hand, and that's what has worked for me. So initial my income was also very small. I started also very small. In fact, when I got into business, after 2010 onwards, then I started making some bulk money compared to what I was making in job, because I was in the initial level of my job. Or 2010, 11, 12, 13, that was the period when I invested pretty good sum, I would say, compared to the earlier years. And though it's been just 14, 15 years to that when I started investing, but even this, the number of years is good enough to reach a certain level of assets. हम तो जब इनफैक्ट जब कंपाउंडिंग की बात करते हैं, हम 20, 25, 30, 40 इयर्स की बात करते हैं, तब वो बहुत बड़ा फिगर दिखता है. बट even when you cross 10 years of your investments, and वो बोलना आसान है, I know so many of my friends जिन्होंने SIP शुरू किया, इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 1 साल 6 महीने 2 साल के अंदर they stopped or they sold their इन्वेस्टमेंट्स और खर्चा कर लिया उसका. 10 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट करके रखे, ऐसे मेरे जानकारों में they are like handful of people. पर अगर आप 10 साल इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो आपको दिखता है कि वो एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट हो गया है, और फिर वो वहां से हर साल वो बहुत एक्सपोनेंशियली फिर उसकी ग्रोथ दिखने लगती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको शुरू करना है, आपको ये नहीं देखना कि इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा. इसी चक्कर में कई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इंडिया में, कि यार इन्वेस्टमेंट करूंगा तो अच्छा करूंगा, कुछ पहले अच्छी इनकम तो हो जाए, अच्छा कमाने लग जाऊंगा तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मजा आएगा. वो मजा करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, चाहे 5,000 रुपए से शुरू करो, पर शुरू तो करो. वो हैबिट तो डालो, हैबिट नहीं डालोगे तो बाद में 50,000 भी इन्वेस्ट नहीं होंगे, 5,000 तो करो. आपने तो तो 5,000 में बड़ा फिगर बोल दिया. आई स्टार्टेड विद 500. मैंने 500 हाँ, के लिए 3-4 एसआईपी कराई थी व्हेन आई स्टार्टेड. perfect. But you started also very early, I believe. No, in At the college age of time 18. itself. It's been like 3 years now. I've been investing for 3 years now. So you were in college time that time, right? You were Correct. like, Yes. Yes. yeah, How old you were back then when you started investing? I was 23. अच्छा. See, there is one thing about investment, like at least for people of my age, they don't realize, मतलब उनको कोई push भी नहीं करता है, जो 21, 22, 23 साल के बच्चे हैं, उनको कोई push भी नहीं करता है, right? You had this push from your father, ये आपने initially भी mention करा कि वो एक sort of environment, एक community होना चाहिए, right?
So people realize this thing when they turn at least like 27, 28, or even after their marriage, after their 30s. तब लोगों को realize होता है, right? So for an average person, let's say someone who starts investment at an age of 27 to 30, maybe 32, ठीक है, ये वाला bracket लेके चलते हैं. So when a person starts investing at this age, then how this middle class person can build a retirement corpus? See, even 27, 28, 30 is not too late, I would say. I know people जो 35 के बाद शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट करना. उसके पहले वो एफडी में पैसा रखा हुआ है, उसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा भी नहीं. ठीक है, वो सेविंग हो गई, पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ. राइट. सो whenever you start, the best way is you start with your emergency fund. You have your insurance in place, both medical and term plan, and then the fourth point comes as an investment. Now, what is the best way to do that? Whether you start in your 20s or you start in your 30s or whenever, the investments are meant to be based on your financial goals. And I mean, I think most of the people, maybe including you also, हम फाइनेंशियल गोल्स नहीं बनाते हैं. हमें लगता है जितना पैसा बन रहा है, जितना बचा पा रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना अच्छा, और जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा, विच इज गुड, विच इज नॉट अ बैड वे टू डू इट. बट इफ यू हैव अ लाइक गोल विद यू कि मेरे को 8 साल में ये अमाउंट चाहिए, मेरा एक ही गोल है, तो उसमें दो चीजें होंगी. एक तो यू विल हैव सम टारगेट विद यू कि मुझे 8 साल में ये बिजनेस खड़ा करना है, या मुझे ये कार खरीदनी है, या मुझे घर लेना है. तो एक वो गोल बनता है आपके खुद की इनकम के लिए भी कि मुझे इतना कमाना भी है, तभी तो मैं इतना बचा के इतना इन्वेस्ट कर पाऊंगा. राइट. तो दोनों काम हो रहे हैं. एक तो आपको एक गोल मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, प्लस यू आर एबल टू कॉन्शियसली इन्वेस्ट फॉर दैट. राइट. और उसको फिर सिंपली बैक कैलकुलेशन करना है कि मेरे इतने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, इतना मैं पर मंथ इन्वेस्ट करूंगा, तो इतना मैं इस डेट पे मैं इस अमाउंट पे पहुंच जाऊंगा, एंड आई देन स्पेंड दैट मनी इन वट एवर माई फाइनेंशियल गोल इज. सो आप किसी भी एज पे स्टार्ट करें, मेक योर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान, एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, सो दैट यू आर क्लियर कि मैं किस चीज के लिए कर रहा हूँ. उससे एक और फायदा होता है, कभी मन भी करता है ना कि कोई खर्चा कर दो या इस इन्वेस्टमेंट को तोड़ के कुछ और कर लो, तो वो गोल याद आ जाता है कि यार मैंने ये किस लिए किया इन्वेस्टमेंट, आई हैव मेड इट दिस इन्वेस्टमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर गोल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो अगर मैं आज ये खर्चा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस गोल को फॉरगो कर रहा हूँ. राइट. तो इफ यू आर अटैच टू दैट गोल, इफ यू आर कमिटेड टू दैट गोल, तो आप वो डिसिप्लिन भी रखोगे, बीच में निकलोगे नहीं बाहर. तो इट हेल्प्स अ लॉट. वो ये बात है, हम उबर या ओला में जाते हैं, अगर हम डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे, गोल नहीं डालेंगे, तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा. वो बैक ट्रेस कैसे करेगा? करेक्ट. सो नाउ टेल मी वन थिंग हियर, जब आप गोल्स की बात करते हो, सो लाइक, so there was this one person, very senior person, I was speaking to him. So उन्होंने जो फाइनेंशियल उनके गोल्स हैं, लाइक दे हैव दिस गोल कि मेरी बेटी की शादी होनी है, तो ऑन एन एवरेज 27-28 साल का उन्होंने टाइम पीरियड जो भी था ले लिया, उसके हिसाब से ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड. आई वोंट कॉल इट अ म्यूचुअल फंड, अ पॉलिसी एक्चुअली. ठीक है, ना वेरी ऑनेस्ट नोट, वो म्यूचुअल फंड नहीं था, वो कोई बैंक पॉलिसी थी कि आप जो भी वर्किंग पीरियड वगैरह होते जैसे भी थे उन्होंने डाल दिया. देयर इज दिस अनदर पॉलिसी फॉर हिज सन कि व्हेन दिस सन विल टर्न 18-19, तो उनका कॉलेज का खर्चा होगा, तो मेरे पास इतना पैसा होगा. राइट. तो उन्होंने ऐसे अपने गोल्स बना के, माइक्रो गोल्स बना के, छोटे छोटे 5-6 गोल बना के, उस हिसाब से ही वाज स्टार्टिंग, ही वाज इन्वेस्टिंग. राइट. So now, what do you mean by goals? Do you mean similar goals, or like are you talking about, like, for this question I used the word retirement corpus? So are you talking about that goal, to retire early or to have a dividend income or something like that? So retirement is also a goal. I mean, एक किसी फैमिली की हम बात करें तो 5-6 गोल्स बहुत स्टैंडर्ड होते हैं. एक गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, एक या दो बच्चे जितने भी हैं उनकी एजुकेशन का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा, और खुद की रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट कितनी जल्दी करनी है, किस एज पे करनी है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी अपना रखना पड़ेगा. राइट. या फाइनेंशियल फ्रीडम एक गोल है, या कोई बोलता है कि मेरा तो कोई गोल है ही नहीं, कोई बैचलर है, कोई इंडिविजुअल है, कहता है मेरा तो कोई गोल नहीं है लाइफ में अभी. तो एटलीस्ट यू कैन हैव अ गोल टू क्रिएट योर वेल्थ, कि मुझे इतना अमाउंट, मुझे 5 करोड़ क्रिएट करना है 15 साल में, फॉर एग्जाम्पल. राइट. सो दैट कैन बी अ गोल. यू कैन मेक अ गोल जस्ट टू क्रिएट दैट अमाउंट, दैट कॉर्पस फॉर योरसेल्फ. सो गोल कुछ भी, और एक इंडिविजुअल या फैमिली के 5-6 स्टैंडर्ड गोल्स होंगे, तो यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर ऑल दोज गोल्स. So मतलब मोटा मोटा बेसिक तो वही होगी ना कि you have micro goals and हर गोल के लिए you have a different investment plan, right? Exactly. All right. So now, tell me one thing, like, are you more into stock market or mutual funds?
So I started with both. When I started investing, I invested in both mutual funds and stock market. And eventually I moved completely to stocks. For my tax saving purpose, I invest in those ELSS equity linked saving schemes जो mutual funds की होती हैं. Yes. For just for the purpose of saving that ATC के जो benefit मिलते हैं. But मेरा primarily जो पूरा इनफैक्ट मेरा entire corpus in equity market is actually in stocks. And the reason is very simple. जब वो research करनी शुरू करी और जब results देखने शुरू हुए, so I could see that results are better in direct stocks compared to mutual funds. Having said that, this is not a recipe which every individual should follow. आपके comfort level पे depend करता है, आपके research level पे depend करता है. I would say mutual fund is a better option for most of the investors who start from day one. And eventually, when you have experienced the market, कि उसके fluctuation देख लिए, समझ में आ गया कि कितना comfort level है, कितना नहीं है, and you have some decent corpus with you, then maybe you can start experimenting with stocks also, and you can start getting into that. So but yeah, for me right now it's completely stocks, I would say. Okay, so now when we talk about mutual funds, so there are two ways to invest in. First is lump sum, second is SIP, right? Right. So how a person can decide कि मेरे को particular fund में SIP जाना चाहिए या फिर lump sum जाना चाहिए, किस हिसाब से, how that works? See, first of all, understand हम हर महीने कमाते हैं और हर महीने सेव करते हैं, तो हर महीने इन्वेस्टमेंट होगा, राइट. लमसम इज समथिंग जो आपके पास वंस इन अ वाइल आता है, कोई बोनस मिल गया या कोई और बिजनेस इनकम आ गई या कुछ सेल किया, कोई एसेट सेल किया, तो उससे लमसम अमाउंट आ गया. तो फॉर 99% ऑफ योर लाइफ टाइम आपके पास हर मंथ इनकम आएगी, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो सैलरी इनकम हो. तो आपको एसआईपी तो करनी ही करनी है, वहां पे ब्रेक नहीं दे रहा है, नंबर वन. नंबर टू, अब लमसम पैसा आ गया तो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट करें या उसको भी एसआईपी फॉर्म में कर दें. सो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि उसको एसआईपी फॉर्म में करो. फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए कहीं से, मेरे पास कोई बोनस आ गया, कोई ना कोई एसेट आ गया मेरे पास. अब 10 लाख को मैं एक साथ डालूं या मैं उसको एक एक लाख करके 10 महीने में डालूं, आई वुड से द सेकंड ऑप्शन इज बेटर. बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट द मार्केट कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा क्या होने वाला है. उससे इसलिए बेटर है कि मैं उसको स्प्रेड आउट कर दूं, जिससे कि मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो ठीक रहे. एक्सेप्ट केसेस लाइक मार्च एंड अप्रैल 2020 जो 10 साल में एक बार आते हैं या कई सालों में एक बार आते हैं. लास्ट 2008 में ये अपॉर्चुनिटी आई थी, 8 एंड 9 में. उसके बाद 11-12 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है. तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है एंड यू हैव लमसम एट दैट पॉइंट इन टाइम. अब वो भी एक कोइंसिडेंट है कि वो अपॉर्चुनिटी भी आई और आपके पास लमसम भी था, ये होना भी जरूरी है. अब मेरे पास आज अगर लमसम है तो आज मेरे को उस रेट में स्टॉक्स नहीं मिलेंगे जो आज से 10 महीने पहले मिल रहे थे, राइट. सो या 11 महीने पहले मिल रहे थे. सो आज के दिन अगर लमसम है तो मैं उसको स्प्रेड आउट कर दूंगा. बट स्प्रेड आउट का मतलब ये भी नहीं कि मैं उसको 5 साल स्प्रेड आउट करूंगा, मैं उसको 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के पीरियड में यूजुअली आई वुड स्प्रेड आउट. और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसी टाइम मेरे पास लमसम आ गया, देन आई विल नॉट लूज दैट अपॉर्चुनिटी आल्सो. So SIP is the best way, and it is actually the natural way for most of the people, because you get money every month. You don't get money like once in 6 months and once in a year all the time. Correct, but there's one thing I noticed about lump sum, and like there's a difference between lump sum and SIP in terms of the returns you get, right? So, Yeah. so there are a lot of people who are aiming for short-term goals, short-term as in like 3 to 5 years का frame, right? Okay. So let's say if I invest in a particular fund, lump sum, and I'm getting maybe let's say 25% returns, just an example. And अगर मैं SIP करता हूँ, then I'm getting let's say 15-16% returns, maybe 17, right? Okay. So for a person who just started investing, like even for me, like when I started investing, जब मेरे को वो ऑनलाइन में से देख रहा था कि लमसम में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, उसमें SIP में वो थोड़ा ल्यूक्रेटिव सा लगता है, यू आर गेटिंग मोर रिटर्न हियर. तो मैंने सोचा अगर मैं 500 रुपए की भी SIP चलो कर रहा हूँ अभी, तो इससे अच्छा मैंने देखा बैंक में कितने हैं, मैंने कहा चलो इसमें डाल देते हैं 7-8 हजार रुपए. तो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू लमसम थिंग. ठीक है, वो उस टाइम में लमसम डाल दिया था, राइट. सो ये चीज लाइक जो SIP और लमसम वाली चीज है, सो SIP इज लाइक SIP में रिटर्न्स इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो आपका एवरेज हो जाता है बाद में, जैसे नाव ऊपर होता रहता है, या फिर आर देयर सम अदर डिफरेंट रीजंस फॉर दिस? See, it was a coincidence when you saw that data कि लमसम का रिटर्न SIP से ज्यादा है. वो डिपेंड करता है डेटा कब का देखा. अब फॉर एग्जांपल मैं अगर लास्ट 1 ईयर का लमसम का वर्सेस SIP देखूंगा, डेफिनेटली लमसम के रिटर्न ज्यादा होंगे, क्योंकि वो अगर मार्च अप्रैल में इन्वेस्ट किया है लमसम तो उसके रिटर्न बहुत अच्छे हैं. पर अगर मैं यही डेटा आज से 1 साल बाद देखूंगा, लेट्स से मार्केट डज नॉट गो टू मच अप और इट रिमेन्स स्टेबल,
तो मेरे को लमसम के रिटर्न शायद पुअर दिखेंगे, एसआईपी के शायद बेटर दिखेंगे। मान लो मार्केट बीच में अगर 2-3 महीने के लिए नीचे आके थोड़ा सा और फिर ऊपर चला गया, या 6 महीने के लिए नीचे आ गया थोड़ा सा और फिर ऊपर चला गया, तो मेरा उस पीरियड में जो एसआईपी किया है उसके रिटर्न बेटर हो जाएंगे। तो हमने वो जो डेटा देखा वो किस पीरियड का था, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, और 5 ईयर पहले या 3 ईयर पहले या 1 ईयर पहले मार्केट कहाँ था, उस पर डिपेंड करता है कि वो लमसम बेटर रिटर्न दिखा रहा है कि एसआईपी बेटर रिटर्न दिखा रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि लमसम के बेटर ही आते हैं, बोथ काइंड्स ऑफ सिचुएशंस आर देयर। एंड आई वुड से अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट का डेटा देखेंगे 20 या 25 साल का, तो लमसम वर्सेस एसआईपी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। वही बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ टाइम, वो डिफरेंस कम होता जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, राइट। एंड एज आई सेड, लमसम, मान लो मैं कहता हूँ लमसम के रिटर्न ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 500 रुपए हर मंथ सेव करके एक साथ 3,000 रुपए 6 महीने बाद से इन्वेस्ट करूँ। वो फिर टाइमिंग द मार्केट कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि 6 महीने बाद मार्केट नीचे जाएगा तो मैं शायद बड़ा पैसा लगा दूंगा। उससे बेटर है आप मैं हर महीने इन्वेस्टमेंट करूँ, अपॉर्चुनिटी आती है उस टाइम मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड हुए तो गुड, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैं हर मंथ तो कर ही रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। अब मार्च अप्रैल में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा फंड नहीं थे, इट्स ओके, मैं जो हर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा था, तो मैंने उस टाइम पे भी खरीद लिया। पर Correct. लमसम के रिटर्न ज्यादा आते हैं एसआईपी से, ऐसा कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं है। इनफैक्ट देयर आर बोथ काइंड्स ऑफ डेटा अवेलेबल, सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपने कब इन्वेस्टमेंट किया। हाँ मतलब this is something which you can't generalize. हाँ, जनरलाइज नहीं कर सकते। All right. So मेरे दिमाग में एक और चीज आई. So there are a lot of policies from like a lot of banks, HDFC, SBI, सबकी अपनी अपनी policies होती हैं कि आप हर एक साल 1 लाख रुपए डालो और 10, 12, 15 साल बाद. Same goes with the LIC. A lot of people put their money into LIC policies, right? And most of these, राइट, let's not say most, but a lot of policies have 0% risk. whatever policies you're saying, it's insurance policies first of all, it's not anything else, it is actually insurance। Correct, correct. अब वो इंश्योरेंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं हम यही देखते हैं कि हमने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया पर मंथ, और 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद हमें ये वाई अमाउंट मिल गया। और वो वाई अमाउंट हमेशा बहुत बड़ा दिखता है देखने में, क्योंकि वो 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद मिलने वाला है। अगर हम उसका रिटर्न्स निकालेंगे, द बेस्ट रिटर्न्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर ऑल्सो इन सिंगल डिजिट, 8-9% इज लाइक ऑन द हायर साइड। जो हम कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि ये यूलिप प्लान है, इसमें लास्ट 5 साल के या लास्ट 7 साल के रिटर्न्स हैं 15%, 13%, 18%। वो रिटर्न्स डेफिनेटली वो जो क्लेम कर रहे हैं वो है, पर अगर मैंने उस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया होता तो वो पॉलिसी जो है वो 15 साल की थी या 20 साल की थी, वो 5 साल की पॉलिसी नहीं थी। वो बेचते ऐसे हैं कि आप 5 साल के लिए पेमेंट करो, 3 साल के लिए पेमेंट करो, उसके बाद अगर आप पेमेंट बंद कर दोगे तो आपकी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेनल्टी नहीं लगेगी, पर आपकी पॉलिसी तो चलेगी 10, 15, 20 साल, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी कभी 3 या 5 साल की नहीं होती, राइट। वो बेचने का तरीका है कि 3 साल पेमेंट करना सर, आप उसके बाद तो पेमेंट ही मत करना, या 5 साल पेमेंट करना उसके बाद तो पेमेंट ही मत करना, राइट। तो आपको सेल करने के चांसेस बढ़ गई पॉलिसी को, राइट। अब वो अगेन उस एग्जांपल पे आते हैं कि कोई पॉलिसी कहती है लास्ट 5 साल का रिटर्न है 13% रिटर्न या 15% रिटर्न, पर अगर मैं उस पॉलिसी को सरेंडर करने जाऊंगा ना तो मेरी पेनल्टी लगेगी उसके अंदर। तो वो सब कटने के बाद, चार्जेस कटने के बाद मेरे पास 13-15% रिटर्न छोड़ो, मेरे सिंगल डिजिट आ जाएंगे, वो भी बहुत है। तो मैं एक्चुअल में वो रिटर्न नहीं कमाता, मेरे पास पैसे मेरे हाथ में नहीं आते हैं वो, राइट। और यही पॉलिसी अगर मैं 15-20 साल रखूंगा तो वो रिटर्न वो नेचुरली नीचे आके वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। नो इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया has given more in double digit returns। मैं तो बात कर रहा हूँ 15-20 साल किसी ने पॉलिसी को रखा, और शॉर्ट टर्म के लिए रखोगे वो पेपर पे हैं वो रिटर्न्स, पर आपको वो पेनल्टी और चार्जेस कट के मिलेंगे, एक्चुअली में हाथ में नहीं आएंगे। बट अगर आप इन्फ्लेशन के भी हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, जो भी फिगर्स होते हैं, वो जो ल्यूक्रेटिव फिगर्स आपको लगते हैं कि 12, 15 साल बाद मिलेंगे, स्टिल लाइक देर आर फ्यू पॉलिसीज, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में आपका रिटर्न सिंगल डिजिट रहता है, बट स्टिल देर आर फ्यू पॉलिसी जहां पे आपको थोड़ा डिसेंट रिटर्न आ जाता है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट यू हैड लाइक 0% रिस्क, प्लस मेरे को एक भी रुपए की सरदर्दी नहीं थी। इवन इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, तो मेरे को राइट, देखना तो पड़ेगा, आई हैव टू डू सम रिसर्च, राइट। मेरे को महीने में, 4 महीने में एक बार उठा के देखना तो पड़ेगा हाउ द मार्केट इज डूइंग, राइट। बट so like are you totally राइट। against these kind of policies, या फिर this is something if there is a beginner कि हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं? सी यू टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन की जो हम बात कर रहे हैं, पहली बात, अगर हमें नहीं पता कि हमारा इन्फ्लेशन एक्चुअली में कितना है,
हम वो गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन के फिगर को देखते हैं जो अभी शायद 4 5 6% का चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, या पिछले 10 साल का 6% का एवरेज है। पर अगर हम एक्चुअल इन्फ्लेशन देखेंगे, आई कॉल इट हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, तो लास्ट 40 साल का, मैं लास्ट 40 साल की बात क्यों कर रहा हूँ, 40 साल एक जनरेशन का लाइफ टाइम होता है, एक वर्किंग लाइफ होती है किसी भी इंडिविजुअल की, या किसी फैमिली को बोल लो आप। तो एक फैमिली का लास्ट 40 साल का इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो वो इंडिया में बेयर मिनिमम 10% है। इट इज मोर देन 10%, इट इज एक्चुअली मोर देन 12% फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। और उसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है। हम 2021 में खड़े हैं। 1981 में व्हाट वाज द एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली पर मंथ फॉर अ पीपल ऑफ 4, एंड व्हाट इज द एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली टुडे इन 2021 फॉर अ पीपल ऑफ 4। तो सिंपल मैथ्स लगा के देख लो एक्सेल शीट पे, कैलकुलेटर में, यू विल गेट द आंसर कि तुमने कितना इन्फ्लेशन झेला है, विटनेस किया है लास्ट 40 सालों में। इट विल बी मोर देन 10% इनवेरिएबली, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो कह रहा हूं मैं। ठीक है। अब अगर 10% इन्फ्लेशन है, और अगर आप पॉलिसी के अंदर 7 8 9% भी कमा रहे हो, तो आप हर साल अपना पैसा इरोड कर रहे हो, अपनी वेल्थ को इरोड कर रहे हो। तो हमें लगता है कि 6 7 8% भी बुरा क्या है, अगर फ्री में मिल रहा है, रिस्क फ्री मिल रहा है। वो रिस्क फ्री तो है, पर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा। Apart from mutual funds and stocks, what are the different ways in which we can invest our money, like real estate, gold, और क्या क्या? सी ब्रॉडली हम देखेंगे तो 5 ही एसेट क्लासेस हैं। एक रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में यू कैन हैव फ्लैट्स, प्लॉट्स, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, वॉट एवर इट इज। सेकंड हो गया इंश्योरेंस। फिर हो गया इक्विटी मार्केट, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो। देन यू हैव ऑल दिस फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम जितनी भी होती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, आरडीज, एफडीज एंड ऑल दीज। एंड द फिफ्थ वन इज गोल्ड। राइट। तो ये ब्रॉडली ये 5 कैटेगरीज ही हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट के अलावा बात करेंगे, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स के अलावा, तो या तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी में कर लो, या आप प्रॉपर्टी में कर लो, या आप गोल्ड में कर लो। ब्रॉडली ये 3 ऑप्शन बचते हैं। या एफडीज को मैं रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, आई वुड मोर कॉल इट लाइक सेविंग, या सेविंग योर मनी और पार्किंग योर मनी समवेयर। उसमें रिटर्न तो इन्फ्लेशन किसी हालत में बीट नहीं होने वाला। Correct. बट उसके अलावा ये 3 ब्रॉड ऑप्शंस हैं, गोल्ड, प्रॉपर्टी एंड इंश्योरेंस। So property से एक चीज मेरे दिमाग में आती है, REITs. राइट। REITs is a very new thing in India. राइट। So do you want to share something like anything, your thoughts related to REITs? सी रीट्स इज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि मैं अगर छोटा इन्वेस्टर हूं, मैंने आज ही कमाना शुरू किया है, मेरे को वो एक आउटस्कर्ट्स में जाके अगर छोटा 100 गज का प्लॉट भी लेना है, तो मुझे 5 10 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, नो मैटर विच टाउन आई एम इनटू। राइट। तो वो इकट्ठे करते करते शायद मेरे को 3 4 5 साल लग जाए, शायद ज्यादा टाइम लग जाए। तब तक मैं पैसा अपना एफडी में रखूंगा या कहीं और रखूंगा, जहाँ पे इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो रहा। सो रीट से एक मुझे ऑप्शन मिलता है जहां पे मैं छोटे अमाउंट से प्रॉपर्टी में एक्सपोजर ले सकता हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। एज यू राइटली सेड, रीट्स इज अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। अब उसके रिजल्ट्स जो डिजायर्ड हैं वो आते हैं नहीं आते हैं, वो एक तो टाइम बताएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में भी बहुत वॉलिटिलिटी है, देखी गई है पिछले कुछ टाइम में, जो यूजुअली नहीं होती थी। जिस Correct. तरह का हम साइकिल देख रहे हैं प्रॉपर्टी में, हमने पहले नहीं देखा। लास्ट 20 30 ईयर्स में वो चीज नहीं देखी जो लास्ट 5 7 सालों में देखी है। अब आगे जाके कमर्शियल चलेगा नहीं चलेगा, रेसिडेंशियल चलेगा नहीं चलेगा, वो देखने की बात है। क्योंकि रीट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। और अभी कोरोना के बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज के फ्यूचर के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि कितनी कंपनीज एम्प्लॉयर्स को ऑफिस बुलाने वाली है, कितना वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चलने वाला है। तो एक वो रीट्स के ऊपर एक ये चैलेंज है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहां से आप वो रिटर्न्स कैसे कमाओगे। सेकंड, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रीट्स आ रही हैं उसके जो मैनेजमेंट है वो कितने ऑनेस्ट हैं। क्योंकि ये सब नए हैं, नई कंपनीज है, तो अभी वो चेक करना भी बाकी है। We don't have like 50 options with us या 100 options with us with a track record of 10 20 years कि हम बोल सके कि यार ये 4 कंपनी सही है या 5 कंपनी सही है, इनके रीट में लगा दो। राइट। वो चीज अभी नहीं आई है। तो इट्स लाइक वेरी, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एसेट क्लास एंड न्यू वे ऑफ इन्वेस्टिंग, नो डाउट। कंपेयर टू इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन रियल एस्टेट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एज अ कॉन्सेप्ट इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। पर उसके रिजल्ट क्या आएंगे वो इंडिया में अभी कहना बहुत मुश्किल है। What do you mean by honesty? So when I say honest management or being honest, see, be it stocks or whatever, अगर मैनेजमेंट के पास हमेशा हर मैनेजमेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कैसे मैनिपुलेट करके अपनी कंपनी के फाइनेंसेस को दे चीट द शेयर होल्डर्स। सो So और प्रॉपर्टी मार्केट ऐसा है
जहाँ पे आपने कितना कैश में डीलिंग कर ली, कितना आपने वाइट में करी है, और कितना रेंटल इनकम आपने कैश में ले लिया और क्या कर लिया, यू नेवर गेट टू नो. सो इफ यू हैव अ ऑन मैनेजमेंट जो इस माइंडसेट से आया है कि अपने को पैसा कमाना है दबा के अगले 10 साल में, तो वो तो कमा लेगा, आप नहीं कमाने वाले. गॉट इट, यस, करेक्ट. सो एक और चीज, जैसे हमने गोल्ड की बात करी, सो गोल्ड में देयर इज कॉन्सेप्ट लाइक एसआईपी की तरह, यू स्टार्ट डूइंग द एसआईपी इन गोल्ड. ठीक है. एंड a lot of even e-commerce platforms are doing it now कि आप हर महीने 2-5 हजार 10-10 हजार जितने डालने डालो, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम और वेन एवर यू वांट टू क्लोज इट, आप उतना जितना भी अमाउंट आपने या फिर जितना भी गोल्ड अभी तक गेन करा है, आप उसको फिजिकल गोल्ड ले सकते हो. राइट. एंड फिजिकल गोल्ड इज समथिंग विच इज अ वेरी राइट. ऑस्पिशियस थिंग इन इंडिया. ठीक है. लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि शादी में तो गोल्ड देना ही है, एंड लाइक इट्स अ वेरी आई मीन वेरी रिलीजियस थिंग ऑल्सो. राइट. गोल्ड सबको देख के अच्छा लगता है इंडिया में. राइट. सो डू यू लाइक recommend, या फिर is there any alternative to it to have like if a person start building the physical gold in terms of SIP या फिर कुछ और plans, do you recommend this? See again, as a complete, when you are making your entire portfolio financial planning कर रहे हो और उसमें allocation कर रहे हो कि stocks में इतना, म्यूचुअल फंड में इतना, गोल्ड में इतना, इंश्योरेंस में इतना, सो और आपने एक allocate कर रखा है कि मुझे X% गोल्ड में लगाना है. सो फॉर्चुनेटली हमें लास्ट कुछ सालों में इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आए हैं ई गोल्ड के, नॉन फिजिकल गोल्ड के. राइट. डिजिटल गोल्ड बोल लो इसको, ई गोल्ड बोल लो. Interrupt you सो here. या So I'm talking about physical gold कि मेरे को ओके. एक साल बाद हाथ में जितना भी ले लो 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो उस हिसाब से आप मेरे को बताओ. सी जो तुमने एग्जांपल दिया वो बेस्ट है कि आपने वो किया और उसको इन्वेस्टमेंट किया पर मंथ और उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया. दैट इज परफेक्टली फाइन. बट देर इज अ बेटर ऑप्शन कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. उसमें आपको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करने को तो नहीं मिलेगा, पर आपको जो भी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें जो रिटर्न्स आए वो गोल्ड के हिसाब से ही आए. गोल्ड जितना बढ़ा उतने आपने रिटर्न कमा लिए. वो आपने जब पैसा वापस लिया, पैसा निकाला जितने भी टाइम बाद निकालना है, और उससे फिजिकल गोल्ड जाके एक्चुअली में खरीद लिया रियल सेंस में. राइट. नाउ व्हाई एम आई सेइंग गो फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रादर देन अदर थिंग, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो किसी भी गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में नहीं है, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट. वो है हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है. ये कोई नहीं देता. तो ये एक्चुअली एक्स्ट्रा रिटर्न है. मतलब आपने गोल्ड में मान लो X% रिटर्न कमाया तो उसके ऊपर 2.5% का रिटर्न है. ये टैक्सेबल है, पर इवन आफ्टर टैक्सेस यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा. राइट. और ये अगर आपने 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो मेच्योरिटी पीरियड है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, तो ये टैक्स फ्री भी हो जाता है. अब इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम जब रिटर्न्स की बात करते हैं ना, टैक्स की तो बात ही नहीं करते. जैसा कोई टैक्स तो हमारा पड़ोसी देने वाला है, जो कि ऐसा है नहीं. राइट. हम हमेशा बात करते हैं टैक्स के पहले कितना पैसा आया. टैक्स तो 20% 30% 10% टैक्स काटने के बाद कितना आया वो देखो ना, क्योंकि आपके हाथ में तो वही रहेगा. अब ये कितना बड़ा बेनिफिट है कि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, मैं कर रहा हूँ फिजिकल गोल्ड में. 8 साल के बाद हमने गोल्ड बेचा, तुम्हारे रिटर्न्स मेरे से 50% ज्यादा हैं. क्यों? क्योंकि तुमने एक तो टैक्स पे नहीं किया और तुम्हें 2.5% हर साल मिला है, वो अलग. सो मुझे कन्वर्ट करना है फिजिकल गोल्ड में, वो तो मैं कहीं भी आके कर सकता हूँ ना. हर हर गली में, हर शहर में, हर गांव में सुनार की दुकान है. राइट. तो मैं अपना पैसा ले जाऊंगा जो भी इन्वेस्टमेंट किया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, मैं उसको देखिए मैं उससे गोल्ड का फिजिकल गोल्ड खरीद लूंगा. तो दैट्स सो दैट कैन बी डन. बट वो जरूरी नहीं है हम ऐसी स्कीम में करें जो मेरे को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके मेरे को दे रही है. उसमें भी कुछ ना कुछ मेरे को हैसल होगा, बट इट विल बी मोर कन्वीनियंट, नो डाउट अबाउट दैट. बट ये भी बहुत कन्वीनियंट है, घर की लेडीज को बोल दो, उनको पता है गोल्ड कहाँ से लेके आना है, कोई बड़ी बात नहीं. There's a problem with all these e-commerce platforms क्योंकि मैंने खुद कराते हैं चीज. So at the end when you want that digital gold जो भी आपने स्टोर करा है अपने वॉलेट में, अगर आप वो फिजिकल करा रहे हैं, then you'll have to pay a little extra for that. आप फालतू फालतू चार्जेस दोगे. So you are paying making charges on a bar. या आप प्लस अब मैं बार का क्या करूंगा? I'll need to like convert that bar into something else, maybe a necklace or something, right? So वहां पे भी so you end up paying some extra money for that. So ये चीज मेरे को थोड़ी सी सही नहीं लगी थी. So I stopped doing it. And now the next thing. So let's say there is someone who's just starting out. A lot of people still reach out to me कि युगांश कहाँ से सीखा, जो अभी मतलब एक पोस्ट कोविड सिनेरियो है, लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करने लगे हैं. And राइट. even people are of my age also started doing it, right? तो राइट. उनको they have like literally zero clue कि हमें अभी फर्स्ट स्टेप क्या करना है. अगर हम गूगल करें भी तो जाके क्या करें, उनको ये भी नहीं पता, राइट? तो व्हाट आर द सोर्सेज और चैनल्स और एनीथिंग
they can follow for the initial journey of their investments? See, fortunately, last I say 3 to 5 years में इंडिया में इतने सारे और इतने अच्छे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं। Correct. हमें ये तो पता है कि मुझे कोई आर्टिकल पढ़ना है और मुझे कोई वीडियो देखना है 10 मिनट का, तो मैं वीडियो देखना पसंद करूंगा क्योंकि उसमें एफर्ट कम है और शायद मैं ज्यादा सीख भी लूंगा 10 मिनट के वीडियो में कंपेयर टू रीडिंग अ 3 पेज और 2 पेज आर्टिकल, राइट? Correct. सो जो भी बेसिक क्वेश्चन है, मैं आज एक न्यू कमर हूँ, मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ, तो आई कैन सिंपली गो ऑन यूट्यूब और गूगल एंड टाइप हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग और हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सो एंड सो, और आपको यूट्यूब के कोई ना कोई चैनल मिल जाएगा, कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा विच विल स्टार्ट गिविंग यू सम आंसर्स इफ नॉट ऑल। सो दैट इज द बेस्ट एंड इजिएस्ट वे, जहाँ पे रिलक्टेंस कम होगा, जहाँ पे एक वो पोस्टपोन नहीं करेंगे हमारी चीज हर बात पे कि यार बुक पढ़नी पड़ेगी या कोई आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट स्टार्ट गो एंड वॉच लाइक 5 to 10 वीडियोज टू स्टार्ट विद। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, व्हेन यू हैव गॉट सम बेसिक आइडिया अबाउट कि हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, देन द नेक्स्ट स्टेप इज मे बी टॉकिंग टू पीपल हु आर इन्वेस्टिंग ऑलरेडी फॉर लास्ट 10-15 years। डोंट आस्क योर फ्रेंड्स क्योंकि वो आप ही की एज ग्रुप में है, दे आर एज क्लूलेस एज यू, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मे बी आस्क समवन जो 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड यू विल फाइंड समवन इन योर सर्कल, मे बी इन योर कलीग्स, मे बी इन योर नेबर्स, योर एक्सटेंडेड फैमिली, योर फ्रेंड्स, वेरेवर। So वो एक again I'm giving you the easy steps. The first easiest step is going and on YouTube and finding some basic answers. The next step is talking to people, again that is easier, and then next step is maybe start reading more about it, maybe through articles, maybe through books or reports or whatever. So that's like the third step which you can go. So I believe when you follow these steps, you will start getting your answers one by one, and then you can start experimenting whatever way you feel is the appropriate way. Correct. Now, when you talk about community, so this is the last thing I want to ask to you. So, like we are connected for a reason, right? And even the people who are into stocks, who are into investments, and if I'm connected to them, there is a reason for that, right? And I've been into this relationship building thing, the networking thing for a long time now, right? Okay. But a lot of people who just got into jobs, उनको इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट आज वो स्टार्टिंग से उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता कभी कि हमें नेटवर्क बनाना चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए, बाहर लोगों से मिलना चाहिए। सो हाउ लाइक व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ सच पीपल? लाइक इवन लाइक अगर कोई रैंडमली कोई बच्चा आता है मेरे पास भी, बच्चा एज इन लेट्स से आई एम 40, सो अगर कोई मेरे पास बच्चा आता है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट सम इन्वेस्टमेंट ज्ञान, राइट, तो देयर आर हायर चांसेस कि अगर मैं उसको नहीं जानता एंड आई ऑलरेडी हैव लाइक 10 मैसेजेस टू रिप्लाई, तो मैं बाकी 10 लोगों को कर दूंगा अगर मैं जानता हूं, राइट? So instead of cold messaging or cold emailing, what could be a way to build a healthy community around investments? Well, that's a good question, and as you are asking this question, I can see that there is this gap. अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ जो इस फील्ड में शायद एक्सपर्ट है, तो ही माइट नॉट हैव टाइम फॉर मी कि वो मेरे को जवाब दे या मुझे मेंटर करे या मुझे कोई सर्विस दे, राइट? एंड फिर वही होता है कि मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा, मैं शायद उन लोगों के पास चला जाऊंगा जो एक्सपर्ट है ही नहीं, मैं उन्हीं अपने जैसे ही किसी और से पूछ लूंगा और आई माइट एंड अप मेकिंग सम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। So I actually don't have a solution to that as of now. I can't really think of it कि इसको करना क्या चाहिए। Maybe building a community like that, what क्या structure हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, that's something which can be thought upon. But the first step is there is, again, as I said, a lot of data, a lot of information available for free through YouTube and through articles. Effort करना पड़ेगा वहाँ पे, but the more you read, the more you watch such videos, there is a very good chance that you will get of your questions, if not all. Correct. Right. Just to like answer my own question, just to add some point there, like what I did. So I know a lot of people I met through Quora. उन्होंने आंसर लिखे हुए थे, like if I go to Google and search, तो वहाँ पे Quora वगैरह के आंसर्स आए, and then they have dropped like some CTO, उन्होंने अपना नंबर डाला, email डाला, because they were into this thing as a full time thing. Got it. And even when I got in touch with these people कि क्या करते हो कैसे करते हो, they said we manage portfolios, and उनका फिर जो minimum like cap होता है वही होता है कि आपको 10 लाख कैपिटल होना चाहिए। And I was like नहीं नहीं, मेरे पास तो 10,000 मुश्किल से उस टाइम पे, right? Then but still उस फेज से इस फेज तक now I'm still in touch with them, and we are in a position मैं उनको फोन करके पूछ सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। And then there is another way about creating communities. A lot of YouTubers have their own communities. They have Telegram channels, WhatsApp groups, right? And then even if you go to Telegram and you search for maybe investment as a keyword, या फिर stock market, then there must be a lot of groups,
right? Right. Most of them will be totally irrelevant, spammy groups, but still, like आपने जैसे बोला, you will have to put in the efforts. आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, then you will identify the right people and then you can connect with them at a like a Right. individual level. And then, like, one of my favorite platform, LinkedIn, is always there. Yeah. Right. Right. True. So Anupam, now we close this session with one question. So this is a very general question I ask everyone on this podcast. So what is the one advice you want to give to anyone who's watching this? Life advice. Okay. Um, well, one thing which I have realized over time, and I have done my mistakes as well, is whenever you start something new, not just investments, anything, don't just go into it because it's a hype or it's a trend or because a lot of people around you are doing it. Always make sure that you are doing your own research. For example, let me give you a very small thing. Even if my father is starting something tomorrow, my brother is starting something new tomorrow, some new venture, for example, Mhm. and they have done their detailed research and they're like 100% confident, they have given me the entire backload and they back up, and they're like, this is how it will work and this is what we have learned and all. I would still like to do my own research, not because I don't trust them, but because if I do that, my conviction level will go to the next level. Number one. Number two, I will be able to add some value to them as well. Because in their research, maybe they missed something, maybe they missed some perspective which I can get into it. And I can get for them. Right. So whatever you start, no matter whom you are doing it with, no matter how trustworthy that person is, make sure you do your initial study, make sure you delve into it deeper, and then put your foot into it, whether it's only your time or it's your money or it's both time and money. Mhm. Right. So that is one thing which I have made a lot of mistakes. I just went along with people because ये expert है, मेरे पास कुछ और expertise है, उसके पास शायद कुछ और expertise है, and maybe we can do something together. I'm not saying I should become an expert like him, but I should have done some basic uh, knowledge testing, some basic study about that field before putting my time and energy into it. So that's one thing I have learned the hard way, and it really pays off when you make that effort to attain that knowledge and understanding of that domain. I 100% agree with you because there's something which happened with me also. So when I started my investment journey, like जब नया नया डीमैट अकाउंट खुला था, so I got in touch with someone through my sister. So there was this colleague of hers, and उनके कोई friend थे. He was into this thing full time. I Okay. don't know that guy. I never met him, but जो मेरी सिस्टर के फ्रेंड थे, मेरी उनसे बात होती थी, एंड दिस पर्सन सजेस्टेड कि आप पीसी ज्वेलर्स के वो ले लो. तो मेरे को भरोसा था कि दिस पर्सन इज डूइंग दिस थिंग फुल टाइम, राइट. उस Right. टाइम तो नया नया अकाउंट था. मैंने 180 रुपए, 180 के आसपास ही था पीसी ज्वेलर्स का शेयर. मैंने 4 शेयर खरीद लिए. एंड मेरे को उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि चलो कब बेचने. एक उम्मीद थी कि अभी नीचे जा रहा है तो उठेगा. बस मैंने सुन के ले लिया था. मैंने कुछ देखा भी नहीं पीसी ज्वेलर्स में एग्जैक्टली है क्या, उनका रेवेन्यू चार्ट्स वगैरह जो भी होते हैं, जीरो क्लू, राइट. एंड टुडे आई स्टिल हैव दोस 4 शेयर्स विद मी, एंड आई हैव आई थिंक 90% लॉस. वो आई थिंक अभी 15 या 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, बट वो अमाउंट ही इतना छोटा था तो क्या फर्क ही नहीं पड़ता कि चलो छोड़ो. Right. दिस इज समथिंग व्हिच आई आल्सो लर्न द हार्ड वे. Got it. Yeah. No, that definitely. I mean, अब ऐसा नहीं है कि पीसी ज्वेलर्स के ऊपर तुम्हें कोई 2 महीने लगा के स्टडी करनी थी, बट यू शुड हैव डन सम बेसिक थिंग. हो सकता है तुम उनसे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ पाते कि मुझे इसमें ये प्रॉब्लम दिख रही है, फिर भी आप रिकमेंड कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है. तो मे बी यू वुड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो. हो सकता है उसके बाद भी तुम इन्वेस्टमेंट कर देते, पर तुम्हें ये मालूम होता है कि हाँ, मैंने आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मुझे मालूम है मैंने क्या किया है, कुछ मुझे भी आइडिया है और बाकी मुझे थोड़ा बहुत उनके ऊपर ट्रस्ट है. Correct, correct, correct. So this is something which I do now. Like I have a very small community of investors. So let's say if I want to invest in any XYZ company, so I'll reach out to every one of them. कि यार मैंने ये देखा. So what is your perspective to it? So this is something which I started doing now. Right. Right. Yeah, So that's very good. That's a very good way to learn from each other. correct, correct. Yeah. So, all right, Anupam, thank you so much for being on the show. And in case if you want to get in touch with Anupam, or if you want to know more about him and the courses and the also he's offering a free ebook. So, in case if you want to check out that, the link to his website is in the description, and link to his social media platforms is also in the description. You can definitely go and check out.
So thank you so much, Anupam, for your time. Thank you so much for all the insights you have shared with me. I love talking Thank to you. you. Thank you, Yugansh, for inviting me, and thank you for asking the intelligent questions which you asked. Thank you so much. It was a pleasure talking Thank to you. you.